ଆଚ୍ଛା ଆମର ଯାଇଥିଲା ତମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ 30 ଯାଏଁ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ନା ଦେଖିନ? ତାକୁ ତ ରିଭିଜନ କରିଦବ ଡିସ୍କସନ ଥରେ ରିଭିଜନ କରିଦବ ଡିସ୍କସନ ଟାଇମରେ ପଲିଟିଟା ପୁରା ସରୁ 10ଟା 15ଟା କ୍ଲାସରେ ତାପରେ ଡିସ୍କସନ କ୍ଲାସ୍ କରିଦବା ଆଉ ଥରେ ସରିଗଲା ପରେ ଆଉ ଲାଭ କଣ ସବୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜି ଆମର ଏଇ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାୟ ସ୍କିପ୍ ହେଇଯାଏ କାରଣ ଆର୍ଟିକଲ 30 ଯାଏଁ ମାନେ ପଢ଼ା ହେଇଯାଏ ସବୁ ଯାକ ଦେଖି ଆର୍ଟିକଲ 30 ଯାଏଁ କାରଣ ତମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ବଟ୍ ତମର 31 ଠୁ 35 ଯାଏଁ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ସ୍କିପ୍ ହେଇଯାଏ। କାହା ପଚାରିବ ଯେ 33 34 35 ଟିକେ ସବୁବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ରୁହନ୍ତି। 32ଟା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ରିଟ୍ ଇସ୍ୟୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଟ୍ 31ଟାରେ କିଛି ଦୁଇ ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ହାଲାକି ସେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ରିପିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ବଟ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ତଥାପି ଆଉ ଥରେ ତୁମକୁ ରିଭିଜନ୍ କରିଦେଉଛି ଆର୍ଟିକଲ 12ରୁ। ଆର୍ଟିକଲ 12 ତମର ଷ୍ଟେଟ୍ କଥା କହୁଛି। ଆର୍ଟିକଲ 13 ତମକୁ କହୁଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମାନେ ତମର ଦ୍ୟାଟ୍ law that is inderogative and inconsistent with the fundamental right is declared as null and void। ତାପରେ ତମକୁ କହୁଛି କି ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁର ପାୱାର ତମର ଆର୍ଟିକଲ 13ରୁ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଇଛି। 14 ତମର ଇକ୍ୱାଲିଟି, 15 ତମର ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସବୁ ଏକ। ତାପରେ 16 ତମର ହେଲା ଜବ୍, 16ର 4 ତମର କୋଟା ସିଷ୍ଟମ୍। ତାପରେ ସବସେକ୍ସନରେ ଯାହା ତମର ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଅଛି। 17ରେ ତମର ହେଲା ଆବୋଲିସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଅନଟଚେବିଲିଟି। 18 ତମର ଆବୋଲିସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଟାଇଟେଲ୍। 19 A B C D E F ଯାଏଁ ଅଛି। ତାପରେ ସେଠି ତମର କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ତମର ସେ ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍, ତାପରେ ତମର ୱିଦାଉଟ୍ ଆର୍ମରେ ଯାଇକି ପିସଫୁଲି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫର୍ମ ଆସୋସିଏସନ୍ ସି। ତାପରେ ଡି ତମର ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଆ, ତାପରେ ଯେଉଁଠି ବି ଯାଇକି ରହିପାରିବ ତାପରେ କ୍ଲସ୍। ତାପରେ ତମର ଆସିଯିବ କି ତମର ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟୁରସିପ୍ ଆଉ ତମର ଏଇଟା ଉଠିଯାଇଛି ଆଉ 20 ତମର ସେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟୋ ଦେନ୍ ତମର ସେଲ୍ଫ ଇନକ୍ରିମିନେସନ୍ ଉପରେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ରହିଗଲା। 21 ତମର ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ପର୍ସନାଲ ଲିବର୍ଟି। 21A ତମର ରହିଗଲା କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ 2002 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର 86। ଆର୍ଟିକଲ 22ରେ ତମର ଯେଉଁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ଡିଟେନସନ୍ କି ତମର ସେ ଯେଉଁ ଆଫ୍ଟର ଆରେଷ୍ଟ ତମର ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି ହକ୍ ସେସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ। ଆର୍ଟିକଲ 23 ତମର ହେଲା ହ୍ୟୁମାନ୍ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକିଂ ଇନ୍ ଦି ହ୍ୟୁମାନ୍ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଲେଭରି ବ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ। 24 ହେଲା ତମର ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍। 25 ହେଲା ତମର ଯେଉଁ ତମର ପ୍ରୋଫେସ୍ ପ୍ରୋପାଗେଟ୍ ସେସବୁ ଜିନିଷ କରିବ ଥ୍ରୁ ୟର୍ କୋନ୍ ସାଇନ୍ସ। ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ସେଇଟା ମୁଁ ପାଳନ କରିବି ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୁପ୍ ପାଇଁ ଆସିବ 26କୁ ଯିବା କୌଣସି ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା କି ଯାହା ହେଲା ସେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବେ ସବୁ। 27ରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନାହିଁ ମାନେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଉପରେ। 28 ହେଉଛି ଯଦି ମୁଁ ରିଲିଜିୟସ୍ ମାନେ କେଉଁ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍କୁ ଯାଉଛି ସେଠି କୌଣସି ବି ରିଲିଜିୟସ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ଅଳ୍ପାଧିକ ଚଳିବ ବଟ୍ ତୁମେ ତାକୁ ଫୋର୍ସ କାହାକୁ ତୁମେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। 29 ତମର ରହିଲା ମାଇନରିଟିସ୍ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାନେ ତାର ଯେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର କିଛି ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ କଲଚର୍ କିଛି ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମାଇନର୍ସ ବୋଲି କହୁ। ତ ତାଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କି ତାଙ୍କର ସବୁ ହକ୍ 29, 23ରେ ଲେଖା ହେଇଗଲା। ତ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 31। ଆଚ୍ଛା ଛଡ଼ା ଏସବୁ ଦେନ୍ ଦିସ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ 31ଟା ତମର ଥିଲା କମ୍ପଲସରି ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ପ୍ରପର୍ଟି। ଦିସ୍ ଆର୍ଟିକଲ ୱାଜ୍ ଅରିଜିନାଲି ଏ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଡିଲିଂ ୱିଥ୍ ଦି ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ଅର୍ ଦି ରିଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ପ୍ରପର୍ଟି ମାନେ ଏଇଟା ତମର ହକ୍ ବିଷୟରେ ଥିଲା। ଇଟ୍ ମାଣ୍ଡେଟ୍ସ ଦି କମ୍ପେନସେସନ୍ ଫର୍ ସଚ୍ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ବାଇ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍। ଯଦି ଷ୍ଟେଟ୍ କିଛି ତମର ସେମିତି ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ କରିକି ନେଉଛି ତ ତାକୁ ସେମିତିଆ କମ୍ପେନସେସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇଟା ତମ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଥିଲା ଆଗରୁ। କଜ୍ଡ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ସ। It is leading to multiple amendments like first, fourth, 17 and 25 number amendment only तमर ए जो हुई तापर तमर article 31 was deleted from the part 3 by 44 number amendment of 1978। it is a vital historical context for Indian constitutional law। ମାନେ ତମର ଏଇ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ 31ଟା ଆଗରୁ ଥିଲା କମ୍ପଲସରି ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ପ୍ରପର୍ଟି ଉପରେ। ତା ଉପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଫୋର୍ଥ, 17 ଆଉ 25ରେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଦେନ୍ ତମର ଯେଉଁ 5 ନମ୍ବର ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ହେଲା ବା 44 ନମ୍ବର ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ହେଲା 1778ରେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରପର୍ଟିଟାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲଟାକୁ ତମର ରିପିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି।
ମାନେ ତମର ଏଠି ଆଗରୁ ଥିଲା कि ତମର ଯଦି ଏମିତି ଷ୍ଟେଟ୍ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି କମ୍ପେନସେସନ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତମର ରାଇଟ୍ कि ତମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଯାଇକି ରିଟ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିପାରିବ। ବଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ରିଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବେଳେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା କିଏ କାହାର ଜାଗା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବ। ଷ୍ଟେଟ୍ ସିନା କହୁଛି କି ମୋର ୱେଲଫେୟାର ପାଇଁ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କରିବି, ଏଟା ଗୋଟେ କଥା, ବଟ୍ ଲୋକମାନେ ଦେଲେ ତ ତାଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଏଟା। ଏଇଠି ଡିପିଏସ୍ପି ଆଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଭିତରେ ଟିକେ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା कि डीपीएसपी कौच कि वेलफेयर पर मु लोक मान धर कागज अधिका अच्छे जमी तो मुझे गुड प्रपोज नहीं यूजफुल लगे पारि कि जहाँ कतर जमी ना ताकू किसी दे पारि। बट ये सब जिन जो फंडामेंटल राइट को आसाला से जो तो तुम केस पान भाटी केस है कि जो भी सब केस आगु से तो से जो आसला तुम 78 सीना मानटा उठला। बट पूर्वर जो केस आसूला तुम आर्टिकल 31 को यूज कर कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी को नहीं है। Then our 44 number amendment shifted the right to property from article number 31 to article 300A as a legal right। legal right माने एबे तमे कोर्ट को जाई पारिबो, बट कोर्ट ता पर डिसाइड करिवो। आउ तार सेमति आग बळिया नाही कि तमको एतर हक मिलिबो ही मिलिबो। तापर आर्टिकल 30 जो 300A रहिला लिखा जायछि कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड हिज प्रॉपर्टी सेव्ड बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। जदि को प्रॉपर्टी ता ना रे अछि माने को अथॉरिटी तार साइन मार्ची कि तार जो कहते पट्टा बाहर कि जहाँ भी तुम नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड हिज प्रॉपर्टी सेव्ड बाय अथॉरिटी ऑफ द लॉ। जो लॉ द्वारा तुम प्रॉपर्टी सब सेव होगी तुम ना जो प्रॉपर्टी सब जोड़ा सेव अच्छी तुम ना से गुड़ाक एवं तुम सीना फंडामेंटल राइट्स ना बट तुम कोर्ट को लेकिन जापर है। Then it is deprived, the deprivation can occur through the legal process but not as a fundamental right। fundamental right है तुम कौन से रीट इश्यू करे पड़ुला, बट एबे तुम जाके रीट इश्यू दरकार नहीं। माने एबे तुम जीव जेमति तार लीगल प्रोसेस थिवो एमति करिवो सेठी केस दबो जो ये तुमरो एडवोकेट आसीबे फाइट हबो ए सब वाला जिंस। द प्राइमरी डिफरेंस इज दैट इन infringement of article 300A can be challenged in the high court article 2 to 6 not directly in the supreme court under article 32। but तुम article 308 टा तुम हाई कोर्ट थ्रू रे तुम पारिबो article 2 to 6 यूज करी रीट इशू करी पारिबो। कहीं ना तुमको आगुरी कह जाइतिला कि तुमरो सुप्रीम कोर्ट रो जो जुरिडिक्शन रोचे रीट रो कि हाई कोर्ट रो जो जुरिडिक्शन रोचे रीट तार अधिक वाइडर कहीं तुम सुप्रीम कोर्ट रे ओनली फंडामेंटल राइट को लेकिन रीट इश्यू कर पारिबो, बट तुम हाई कोर्ट रे तुम लीगल राइट को भी नहीं रीट इश्यू कर पारिबो। से जो तुम आर्टिकल 300A तुम हाई कोर्ट रे रीट इश्यू कर पारिबो तुम, बट तुम सुप्रीम कोर्ट रे डायरेक्टली जाइए रीट इश्यू कर पारिबो नहीं। हाँ आज आपेलेट कोर्ट तुम जाई परिबो इज आपेल माने फास्ट तुम हाई कोर्ट को जीवो सेठी तुम जहाँ केस हेतु तुम एटू रीट इश्यू हम से रीट इश्यू है जब से सल्व है तुम आपिल करके ऊपर को जापर डायरेक्टली जमी आगुरी जाऊल सेमती जाइब ना है। देन राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज रे आम आज पढ़िया रीट विषय कि रीट केते प्रकार अच्छी कौन कौन अच्छी। द आर्टिकल 32 प्रोवाइड्स ए गारंटी रेमेडी फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय पार्ट 3। एक्चुअली पार्ट 3 आरी ही अच्छी दैट इज द थिंग जहाँ एत सारा फंडामेंटल राइट को किए गोटे इफेक्ट दूसरी किए गोटे भैल्यू दूसरी दैट इज द आर्टिकल 32। सो डॉक्टर B.R. आम्बेडकर says is the most important article of the constitution and an article without which this constitution would be a nullity। माने एठी आउ किछि आर्टिकल 32 ही नथिवो ए सबु जिंस नल किछि लाभ नाही तमर एते सारा आर्टिकल लेखि तमे तमर एते राइट लेखि किछि लाभ नाही जो तमर आर्टिकल 32 नथिवो तमर रीड इस पावर इट इज इटसेल्फ ए फंडामेंटल राइट। एटा भी ता भितर गोटे फंडामेंटल राइट माने जदि आकु भी तुम पार्लियामेंट चेंज करिया को चाहे ये भी तुमरो ताकू माने ता निजो को से निजे माने आर्टिकल 32 ता इटसेल्फ ताकू प्रोटेक्ट करे कारण सी भी गोटे फंडामेंटल राइट जे कि सब फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करे इंक्लूडिंग हिम ता सहित से सब फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करे सब तुम जुडिशियल रिव्यू लगी पार कारण से सब तुम बेसिक स्ट्रक्चर। इट एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू इश्यू डायरेक्शन ऑर्डर्स एंड द रिट। ओके तापर डायरेक्ट एक्सेस टू द सुप्रीम कोर्ट क्लॉज 1 होची guarantees the right to move the supreme court for the enforcement of the fundamental right को लॉ जो तुम ये ताको एनफोर्समेंट पाई तुम सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली जाई परिबो नॉट एज अपील।
एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट टू इश्यू 5 टाइप ऑफ रिट्स कौन कौन गोटे हाबियस पर्पस गोटे मांडामस गोटे प्रोहिबिशन गोटे स्टैट्यूटरी गोटे को वारेंटो ये 5टा रिट को यूज करके तोर सुप्रीम कोर्ट जितक आम फंडामेंटल राइट्स अच्छे प्रोटेक्ट करके रखे द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 इज original but not exclusive. But Article 2 to 6 give similar power to the High Court. The jurisdiction of the Supreme Court under 32 is original but not exclusive. ମାନେ ତୁମେ ବାୟାସ୍ ହେଇକି କିଛି କରିପାରିବନି ଏଗୁଡ଼ାକ ଅରିଜିନାଲ ନଟ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ମାନେ କେମିତି ବୁଝେଇବି ତୁମକୁ ସେଇଟା ମାନେ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ନୁହଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦ ଜୁରିଡିକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ଇଜ୍ ଅଣ୍ଡର 32 ଇଜ୍ ଅରିଜିନାଲ ବଟ୍ ନଟ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ମାନେ ତାର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ପାୱାର ନୁହଁ କି ତୁମେ ଯଦି ସେଠି ଯାଇକି ରିଟ୍ ଇସ୍ୟୁ ନ କରିବ ତ ତାପରେ କିଛି ପ୍ରୋସେସ୍ ହେବ ହିଁ ନି ବଟ୍ ତୁମର ଯେତିକ ରିଟ୍ ଇସ୍ୟୁ ମାନେ ତୁମ ଧର ଏବେ ରିଟ୍ ଇସ୍ୟୁ କରୁଛ ହେଲା ଆଗେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍କୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ବଟ୍ ତୁମେ ଭାବ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେତେଟା କେସ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇକି ଅଛି 3 କୋଟି 4 କୋଟି କେସ୍ ଓନ୍ଲି ତୁମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇକି ହିଁ ଅଛି ତ ତୁମେ ଯଦି ବି ଗୋଟେ ରିଟ୍ ଇସ୍ୟୁ କରୁଛ ତୁମ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଉପରେ देखा पड़ो कि तार केते तार माने जो प्रॉपर लिखिबो तार एक्चुअली सीरियसनेसटा केते सो जिनसर बट इट इज ओरिजिनल बट नॉट एक्सक्लूसिव हला माने द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स jurisdiction if a fundamental right has been violated it can it is the guardian of the fundamental right आपको तुम guardian of the fundamental right भी कहि परिबो जदि तुम सुप्रीम कोर्ट को जाई कि एमती जिंस करिचो तो सुप्रीम कोर्ट तुमको रिफ्यूज करि परिबो नाही कारण एटा तुमरो गोटे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 32 इटसेल्फ ए फंडामेंटल राइट जे कि ता निज को प्रोटेक्ट करे हला तापर केस हो कि हाबियस पर्पस कौन हाबियस पर्पस टू हाव द बॉडी ऑफ द मीनिंग है तार इंग्लिश मीनिंग जाओ कहते टू हाव द बॉडी ऑफ माने इट इज एन ऑर्डर इश्यू बाय द कोर्ट टू ए पर्सन हु हैज डिटेन्ड अनदर पर्सन टू प्रोड्यूस the body of the letter before it. The court then examines the cause and legality of the detention. It can be issued against both public authority and private individuals. That is important. So the exam आसो habeas purpose private को लागू कि ये कन्फ्यूज हो कारण आम स्टेट रे मीनिंग देखिले कौन जो स्टेट को फंड स्टेट कतरू जो फंड जाऊँ से स्टेट पार्ट बट ये से मेंशन करदेला कि ये पब्लिक अथॉरिटी हो कि प्राइवेट हो समस्त हाबियस पर्पस इज एप्लिकेबल जदि किए क्या डिटेन धर मो कति गोटे छुआ आसी मुझे डिटेन करके रखीदे कौन भी कारण बट आउ किए जाएगी हाबियस पर्पस कला कि धर हाबियस पर्पस इश्यू होती माने तुम से लोक को कौटू भी खोजिक आण माने से बॉडी दरकार मत टू हाव द बॉडी जब तुम किए मिसिंग अच्छा तुम क्या पाऊन कि तुम कि लगुच कि तुमको डिटेन करके रखीदे तो सही केस तुम हाबियस पर्पस लगे पार इट इज एन ऑर्डर इश्यू बाय द कोर्ट टू ए पर्सन हु वाज डिटेन अनदर पर्सन जदि से पर्सन को पठा जाए जे कि आउ गोटे पर्सन को डिटेन कर रखी टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ द लेटर बिफोर इट तापाई तुम हाबियस पर्पस लगे टू हाव द बॉडी से लोक जब हाबियस पर्पस कथा न माने तेणु दैट इज ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ताको फास्ट दिया हम समन हुए थे दी थर तीन थर समन पर तुम यदि नजब देन यू आर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तुमको जेल हम जो केस हो कि माने तुम थर एमती किसी केस अच्छी तुम ये देख जिनस हूँ केस चलुव है बट जदि समन जाकि भी से लोक कोर्ट को आसुनी ता माने होची तुम जानिया दरकार कि 3टा समन पर जदि से न आसिला देन यू हैव टू अप्रोच कि 3टा समन हो सारे से आसुना माने इट इज ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नाउ सो यू हैव टू अरेस्ट इट और जाबी देन separate the writ is a bulk word of individual liberty against arbitrary detention जदि तुमको arbitrarily एमती किसी detention रखा जाए एटा तुम individual liberty तुमर ए लिबर्टी individual liberty को हाबियस पर्पस एक्सप्रेस करे हाबियस पर्पस द्वारा तुम लिबर्टी प्रिजर्व होकर रहा कारण तुमको कि एमती सेमती रिटेन कर रखी पार ना एनश्योर दैट नो पर्सन इज हेल्ड कैप्टिव विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन ओके लीगल जस्टिफिकेशन बिना तुम क्या डिटेन कर रखी पार ना से तुम कौन हाबियस पर्पस टू हाव द बॉडी द डिटेंशन इज लॉफुल एज कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट डिटेंशन तुम लॉफुल रहा दरकार गोटे कोर्ट सहमति रखा दरकार तुम कतरे किसी साइन थी दरकार कि हाँ मुझे डिटेन रखुची जमी जो
वारेंट पेपर देखाती कि हाँ तुमको आम नहीं पारू, तो सेटा तुम हक तुम जापर जदि ना तुमको किए एमती बसैक नहीं जाऊँगी, दैट इज इलीगल and not procedure established by the law, and the proceeding is very contempt for the legislator or a court. The proceeding is for the contempt of legislator or a court. देख लो तुमको जदि प्रोसीडिंग सब हेलानी ताल तुम कंटेम्प्ट लगी पारे, तुमको जदि सेही गोटे लोक तुम नहीं कि आसुन माने यू हैव कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तुमको लगियो। द डिटेंशन इज बाय कंटेम्प्ट कोर्ट, माने तुम जदि कोनटा ओ एटा है कंटेम्प्ट, एटा होची कॉम्पेटेंट एंड कोर्ट, डिटेन बाय द कॉम्पेटेंट एंड कोर्ट। व्हाट इज दिस कॉम्पेटेंट एंड? have necessary the ability knowledge or skill to do something successfully। अच्छा डिटेन अच्छा अच्छा माने कोर्ट रो जानतारे ए सब जिंस हबा दरकार। अच्छा द डिटेंशन इज आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, जदि माने सेठी लिखिला कि एतिक एतिक जिंस कोउठु की माने कोन कहलो का ऊपर रिट इशू हो नाही, व्हेन द रिट इज नॉट गारंटेड माने ग्रांटेड, केबे रिट पूरा ग्रांट हुएनी, तुम जदि जाऊच को जगह रिट करुच तुम फेल हो जाऊँगी, तो यही जिनस जो तुम रिट गुड़ा ग्रांट हुए। द डिटेंशन इज लॉफुल, माने जदि डिटेंशन तुम लॉफुल थी माने कन्विक्टेड बाय द कोर्ट, देन से तुम रिट इश्यू हेन, कारण तो लॉ अच्छी पाखे तुम जाए रिट इश्यू कर। प्रोसीडिंग ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ द लेजिस्लेशन कि कोर्ट तुम जो कोर्ट को कि लेजिस्लेशन को कंटेम्प्ट कर कथा मानिन, देन एटे रिट इश्यू हेनी। द डिटेंशन इज कॉम्पेटेंट कोर्ट, माने कोर्ट रो बिना सॉरी बिना इनफॉरमेशन देखा पड़ो, कॉम्पेटेंट कोर्ट देखा पड़ो। तो कॉम्पेटेंट कोर्ट इज कोर्ट विथ ए प्रॉपर लीगल अथॉरिटी टू हियर एंड डिसाइड। अच्छा अच्छा एटा भी गोटे तुम कॉम्पिटेंट खाली वार्डटा गोटे नुआ वार्ड मन रखी कि कॉम्पिटेंट कोर्ट होची आ पाखरे भी तोर अथॉरिटी अच्छी जमती कोर्ट रो अच्छी सेमती लीगल प्रोसीडिंग सब अथॉरिटी अच्छी। एंड द डिटेंशन इज आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, जदि मु मोर एठी हेची किछि ओडिशा रे मु जाई कि मो एमपी रो हाई कोर्ट रे रिट इश्यू कर परिबिनी, सुप्रीम कोर्ट कथा अलगा, बट जदि मो केस किछि हेची तोर बाहर इंडिया बाहर, तो मुझे आसिक सुप्रीम कोर्ट रिट इश्यू कर पारिबी ना, कारण सुप्रीम कोर्ट रो भी जुरिडिक्शन इंडिया भितर, इंडिया बाहर तार जुरिडिक्शन ना। आर गोटे लैंडमार्क केस अच्छी एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला ऑफ 1976 एमरजेंसी टाइम रे अफ्रीम्ड द रिट इज स्टिल अवेलेबल इवन ड्यूरिंग ए प्रोक्लेम्ड इमरजेंसी। बुझीपार तो जब तुमको पचार हम कि तुम यही रिट्टा एमरजेंसी टाइम रे लागू हम ना ना से लिखिदेला यही केस रू एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला ए केस रू तुम आसीगला कि एबे तुम ये जो हाबियस पर्पस तुम एमरजेंसी केस रे भी एप्लिकेबल हम तुम लगे पार है। Then mandamus we command the a command issued by the court to public office asking them to perform a public duty which have them been failed or refused to perform. It means to keep the subordinate tribunals and executive officials strictly within the limit of their jurisdiction. The duty must be mandatory, not discretionary. स्टेट तापर मांडामस छाड़ एतिक जिनस मांडामसटा तुमको कौन कहूँ ना, तो मांडामस इश्यूड बाय द कोर्ट माने कोर्ट रू इश्यू हुए क्या तुम जी पब्लिक ऑफिसर अच्छा गवर्नमेंट ऑफिसर, तुम जो गवर्नमेंट ऑफिस को जाऊच से देखुच तुम किसी माने काम करूना कि डिले कर ड्यूटी से ठीक से लिभौ ना लफुली जदि से अनलफुली जिन कले देन यू हैव टू इश्यू दी मांडामस। मांडामस तुम हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाकि दुईटा जगह इश्यू कर किसी असुविधा ना। इट मीन्स टू कीप द सबऑर्डिनेट ट्रिब्यूनल्स and the executive officials strictly within their limits, से जमीटा लिमिट रे सब रुहतु से जो तुम अच्छी मांडामस। मांडामस तुमको बचेब जदि को गवर्नमेंट ऑफिसर तांकर जुरिडिक्शन बाहर को जाकि किसी स्टेप नौ। एंड मांडामस कैन नॉट बी इश्यूड एगेंस्ट द प्रेसिडेंट और गवर्नर, ये सब डिस्क्लेमर गुड़ाक मन रखियो कि मांडामस ये सब जिन गुड़ा क्या लागू हुए। द मांडामस कैन नॉट बी इश्यू एगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर, कारण मांडामस एमती पढ़ीदेव किसी असुविधा ना, बट जो क्वेश्चन आसो प्रेसिडेंट उपर मांडामस गवर्नर उपर मांडामस लगी पार ना ना कि तुम प्राइवेट इंडिविजुअल उपर मांडामस लगी पार ना ना, सीटे कन्फ्यूज हो। कारण मुझे पढ़ी मांडामस माने वी कमांड, तो वी कमांड क्या मुझे कमांड दूसरी गवर्नमेंट ऑफिसर को ना प्राइवेट को, कारण प्राइवेट ये कवर हुए। तो मांडामस कैन नॉट बी इश्यूड एगेंस्ट द प्रेसिडेंट गवर्नर और एगेंस्ट एनी प्राइवेट इंडिविजुअल और प्राइवेट बॉडी। कौन सी प्राइवेट तुम धर को प्लांट रे कि प्राइवेट कंपनी तुम चाकरी कर, तो तांकर जो लॉ थी तुमको अनुसार चलिए पड़ो। तुम कहबनी कि तुम
ସାଲେରୀ ଆସୁନି, ସେ ତା ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଛି। ସେ ଲେବର ଫେବର ଲ ସିଏ ତା ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଛି। ବଟ୍ ଏ ଯେଉଁ ଜୁରିଡିକ୍ସନ୍ ଉପରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ମାଣ୍ଡାମସ୍ ଉପରେ ତମେ କେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନାଁରେ ଯାଇକି ମାଣ୍ଡାମସ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତମେ କେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇଏରେ ଚାକିରି କରୁଛ କି ତମର ପ୍ରାଇଭେଟଲି ତମେ ଯଦି କିଛି କାମ କରୁଛ, ଧର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଦେଇଛ କି ତମର ଧର ବାହାଘର ହେଉଛି କି ତମର ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ତମେ ତାକୁ ପଇସା ପତ୍ର କାରବାର ହେଉଛି, ଆଉ ସେଠି ତମେ ଯାଇକି ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରିବନି କି ନା ତୁ କାମ କର ଠିକ୍ ଠାକ୍। is for the government official, not private body. Acha, scope or limitation of the mandamus. The nature of the we command meaning hochi the applicant must have a legal right to perform of the legal duty. A legal duty perform pai bi taku gote legal right tar thiba darkar, and the duty must be of a public nature or statutory or one imposed by common law, जोटा कि तोर पब्लिक नेचर ହେଇଥିବ कि तोर कॉमन लॉ ଭିତରେ ବି ଆସୁଥିବ। ତା ପାଇଁ ତମ ମାଣ୍ଡାମସ୍ ଇସ୍ୟୁ କରି, ମାନେ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ଇସ୍ୟୁଡ୍ ଟୁ ଏନଫୋର୍ସ ଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଓବ୍ଲିଗେସନ୍। ମାନେ ଯଦି ତମର କିଛି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ବେସିସ୍ରେ କିଛି ଦେଇଛ ଯାହାକୁ ବି ହଉ, ସେଟା କଭର ହୁଏନି ତମର ମାଣ୍ଡାମସ୍ରେ କି ୱି କମାଣ୍ଡ ତମେ ଆଣିକି ସେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟଟା ଫେରାଅ, ସେମିତି ହେଇପାରିବନି। ତା ତମ ପର୍ସନାଲ ଜିନିଷ। ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ଇସ୍ୟୁଡ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଦି ଡ୍ୟୁଟି ଇଭଲ୍ଭସ୍ ଏ ମ୍ୟାଟର ଅଫ୍ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍। ଯଦି ତମର ଡ୍ୟୁଟି କିଛି ସେମିତି ଇଭଲ୍ଭ ହେଲା ତ ମ୍ୟାଟର ଅଫ୍ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଉପରେ, ମାନେ ତମର देखिए जो मैटर ऑफ डिस्कशन जो मीनिंग टा जानी ठीक ना ना। अरे यार, when a duty involves the matter of discussion, the person or entity responsible has the power to exercise the judgment. The person or entity responsible has the power to exercise the judgment and choose from a range of the legal uh, to acceptable action rather than being rounded by a single or mandatory course of the action. This discretion must be exercised reasonably in a good faith and for a proper proposed, not arbitrary or based on the what duty the person or the entity responsible has the power to exercise the judgment and choose from the range of the legal acceptable action rather than कौन ठीक से मुझे बुझ पाऊँ कोई बताओ the responsibility that required an individual to use their judgment when performing it. अच्छा अच्छा, individual to use their judgment when performing it, and this contrasts with the ministerial duty which is straightforward and does not allow for the personal description. अच्छा अच्छा, ମାନେ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ଇସ୍ୟୁଡ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଏ ଡ୍ୟୁଟି ଇନଭଲ୍ଭ ଏ ମ୍ୟାଟର ଅଫ୍ ଦି ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍। ମାନେ ତମର ଯଦି କିଛି ପର୍ସନାଲ କାମ ଅଛି, ମାନେ କେମିତି ଜିନିଷ କହିଲ, ଯେମିତି ସେ ଲେଖିଲା ଏଠି ତମର ଧର କିଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କାମ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ତମର ଜଜମେଣ୍ଟାଲ ନୁହଁ, ମାନେ ସେ କାମ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ସେମିତିଆ ଆସୁନି କି ଏଟା ଲାଗୁଛି କି ଏଟା ତମର ମାନେ ସେଲ୍ଫ ଇଏ ପାଇଁ, ତ ସେଠି ତମେ ମାଣ୍ଡାମସ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଧର ତମର ଯଦି କିଛି ଲିଗାଲ ରାଇଟ୍ ମାନେ ଥିବ ତାହେଲେ ତମେ ମାଣ୍ଡାମସ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିପାରିବ। ଲିଗାଲ ରାଇଟ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଲ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ତା ଆକର୍ଡ଼ିଂଲି ଲିଗାଲି ତମେ ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷ କରିଛ, ଯଦି ସେ ତାପରେ ବି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ମନା କରୁଛି, ଦେନ୍ ୟୁ ମାଣ୍ଡାମସ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିପାରିବ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ଏମିତି କିଛି କାମ ହେଉଛି କି ତମର ପବ୍ଲିକ ନେଚର, ଷ୍ଟାଟ୍ୟୁଟାରୀ କିମ୍ବା ତମର କମନ୍ ଲ ଉପରେ ଇମ୍ପୋଜ୍ ହେଉଛି, ତମେ ତା ଉପରେ ବି ମାଣ୍ଡାମସ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିପାରିବ। ବଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଓବ୍ଲିଗେସନ୍ ଉପରେ ତମେ ମାଣ୍ଡାମସ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ତମର ମ୍ୟାଟର ଅଫ୍ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଉପରେ ବି ତମେ ଯେଉଁ ମାଣ୍ଡାମସ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିବ ନାହିଁ। ମ୍ୟାଟର ଅଫ୍ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍ଟା ତମେ ଦେଖିକି କହିପାରିବ। Separate description chart. The applicant must make a demand for justice and the demand must have been refused before the writ can be moved in the court. The applicant must make a demand for the justice and the demand must have been refused before the writ can be moved in court. ହେଲା ଏଟା ଦୁଇଥର ପଢ଼ିଦେଲେ ସବୁ ଜାଣିଯିବ। प्रोविजन फास्ट आमर गला मांडामस सेटा तुमको देखिए कहबी से जो पावर ऑफ डिस्क्रिप्शनटा तुमको देखिए कहबी सेटा मु जानि पाने कोन लिखा है। देन द प्रोहिबिशन प्रोहिबिशन होची इश्यूड बाय हायर कोर्ट टू ए लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल टू प्रिवेंट द लेटर फ्रॉम एक्सीडिंग इज जुरिडिक्शन। जदि एटा गोटे लोअर माने गोटे हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को इश्यू करे, जेमति तमर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट मान को इश्यू करिवो, जदि से तार जुरिडिक्शन बाहर को भी जाऊँगी से जुरिडिक्शन बाहर जाकि काम करुँच तो ताकू प्रिभेन्ट प्रोहिबिशन लगे टू फॉरबिड माने रखईदबा। इट इज ए प्रिवेंटिव रिट
It issued only when a case is pending in the lower court before the final order is passed. ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ ଅର୍ଡର ପାସ୍ ହେଇନି, ଫାଇନାଲ ଅର୍ଡର ପାସ୍ ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ପ୍ରୋହିବିସନ୍ ଲଗେଇ ପାରିବ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ବେଟର ଦ୍ୟାନ୍ ଦି କ୍ୟୁର୍। ଏଇ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ୱାଇଜ୍ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ବେଟର ଦ୍ୟାନ୍ କ୍ୟୁର୍। ଏଇ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ୱାଇଜ୍ ତମେ ଯଦି କେଉଁ ତମର ମାନେ କୋର୍ଟରେ ଲୋୟର କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ଜଜମେଣ୍ଟ ଆସିନି, ତାହେଲେ ତମେ ଯାଇକି ପ୍ରୋହିବିସନ୍ ଲଗେଇ ପାରିବ। ଯଦି ଜଜମେଣ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି ତା ପାଇଁ ଅଲଗା ରିଟ୍ ଅଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦି ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଅର୍ କ୍ୱାସି ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ବଡିଜ୍। କ୍ୱାସି ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ମିନ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଭଳି ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ସେମ୍ ପାୱାର ଥିବ ଆଣ୍ଡ ସେମ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବି ସେମାନେ କରୁଥିବେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଅଥରିଟିଜ୍, ଲିଗାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ବଡିଜ୍ ଅର୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପର୍ସନ୍ସ। ମାନେ ଏଇଟା ଓନ୍ଲି ତୁମର କୋର୍ଟ ହିଁ, କୋର୍ଟ କାମ ଏଠି। ତମେ କହିବନି କି ସେ ଏମଏଲଏ କାହିଁ କାମ କରୁନି, ମୁଁ ଯାଇକି କରିବି ପ୍ରୋହିବିସନ୍। ସେ ତା ମାନେ ଲେଜିସ୍ଲେଟର ପାର୍ଟ ସିଏ ଅଲଗା, ଇଏ ତମର ଯେଉଁ କୋର୍ଟ, ଏଇ ଯେଉଁ ତମର ପ୍ରୋହିବିସନ୍ଟା ତମର ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଇନ୍ ଦ କୋର୍ଟ। ଯଦି ତମର ଲୋୟର କୋର୍ଟରେ, ଲୋୟର ମାନେ ଏମିତି ନାହିଁ କି କୋର୍ଟ ତମର ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲିରେ ତମର କିଛି ବିଲ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ତମେ ଯାଇକି କେସ୍ କରିବ, ସେମିତି କିଛି ହେବନି। ଓନ୍ଲି ତମର ଯେଉଁଠି ତମର ମାନେ କେସ୍ଟା ତମର ଦିଆଯାଇଛି, ଯଦି ସେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁନାହିଁ, ତାର ଜୁରିଡିକ୍ସନ୍ ବାହାରକୁ ଯାଇକି କାମ କରୁଛି, ଦେନ୍ ତମେ ଏଇ ରିଟ୍ଟା ଇସ୍ୟୁ କରିପାରିବ। ଦେନ୍ ଆଉ ଏଇଟା କୌଣସି ବି ତମର ଅଥରିଟି ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବନି, ଯାହାର କି ତମର ଲିଗାଲ ଅଥରିଟି ମାନେ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଅଥରିଟି ମାନଙ୍କ ଉପରେ। ପ୍ରୋହିବିସନ୍ ଇସ୍ୟୁଡ୍ ବିଫୋର୍ ଦ କେସ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଡିସାଇଡେଡ୍, ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍, ଇଏ ବି ତମର ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ମାନେ ପ୍ରୋହିବିସନ୍ଟା। ବଟ୍ ସେଚୁଟେରୀ ଇସ୍ୟୁଡ୍ ଆଫ୍ଟର ଦ କେସ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଡିସାଇଡେଡ୍, ତମର ପ୍ରୋହିବିସନ୍ ପାଇଁ ଅଲଗା, ସେଚୁଟେରୀ ପାଇଁ ସିଏ ଅଲଗା। ବୋଥ୍ ଆର୍ ଇସ୍ୟୁଡ୍ ଓନ୍ଲି ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଅର୍ ଦି କ୍ୱାସି ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ବଡିଜ୍। ବୋଥ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଇସ୍ୟୁ ଅର୍ ଲ୍ୟାକ୍ ଅର୍ ଆସେସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଜୁରିଡିକ୍ସନ୍। ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଲାଗୁଛି ମାନେ ଇଏ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଜଜମେଣ୍ଟାଲ ଦେଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ୍ସେସ୍ ମାନେ ଜୁରିଡିକ୍ସନ୍ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏପଟ ସେପଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ କେସ୍ରେ ତମେ ଗୋଟେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଶୁଣେଇ ସାରିଲା ପରେ ବି ହାଇକୋର୍ଟ, ତମେ ଯାଇକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଉପରେ ସେଟୁଟାରୀ ଇସ୍ୟୁ କରିପାରିବ। ପ୍ରୋହିବିସନ୍ କେତେବେଳେ କରିବ? ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କେସ୍ ସରିନି, ବଟ୍ କେସ୍ ଯେତେବେଳେ ସରିଯାଇଛି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତମର ସେଟୁଟାରୀ ଆସିବ। ଏ ରିଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ପ୍ରୋହିବିସନ୍ ଇଜ୍ ହାୟର କୋର୍ଟ ସିଗ୍ନାଲିଂ ଷ୍ଟପ୍, ୟୁ ଡୁ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଦ ପାୱାର ଟୁ ହିୟର ଦିସ୍ କେସ୍। ଏଇଟା କହୁଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଷ୍ଟପ୍, कि यू हाव डोंट एनी पावर टू हियर दिस केस, कि से वाइज तुम हाईकोर्ट पाखु सुप्रीमकोर्ट नहीं जाए कि हाईकोर्ट तोर लोअर कोर्ट पाखु नहीं जाए। यहाँ तो आम पढ़ुं सुप्रीमकोर्ट विषय, तेणु सुप्रीमकोर्ट तल कोर्ट टू जिन रखी हाथ को आनीपर है। देन सेटुटरी टू बी सर्टिफाइड और टू बी इनफॉर्म्ड, इट issued by the higher court to the set aside the order of a lower court or the tribunal. It is issued by a higher court to squeeze the order of the lower court on the tribunal. It is be issued on the ground of the excess jurisdiction or lack of jurisdiction or error of the law apparent on the face of the record. The scope was expanded in 1991 to include administrative authorities affecting rights. ये कौन कि जदि हायर कोर्ट कि तार लोअर कोर्ट मानक माने एमती कौन जिनस इश्यूड स्क्वीज करिया चाहूँगी माने माने केमती रुह मुझे स्क्वीज माने से भावुँ से तो रिजेक्ट एंड इनवैलिड एक्सपेशली बाय द लीगल प्रोसेस। हाँ, जदि इश्यूड बाय हायर कोर्ट टू स्क्वीज द ऑर्डर ऑफ ए लोअर कोर्ट और ए ट्रिब्यूनल, जदि लोअर कोर्ट कि ट्रिब्यूनल गोटे किसी जजमेंट दे देइछि, एबे सीए भी ताकू माने पावर अच्छी, एबे सी ताकू हटेइकी ता हाथ को केस आनी पारिबो किंबा से जो केसटा होछि जजमेंट देइछि टोटल हटेइ दबो। एंड इट इज इश्यूड ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सेस जुरिडिक्शन, जोटी लागिला सुप्रीम कोर्ट को कि हाई कोर्ट एबे तार जुरिडिक्शन बाहर को जाई केस रो जजमेंट गुडाक दउछि, तो से साइड रे तमे सेटुटरी इश्यू करि पारिबो। लैक ऑफ जुरिडिक्शन और एरर ऑफ द लॉ अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, जदि तमरो रिकॉर्ड रे किछि एमति लीगली मिस्टेक अछि जोटा कि लॉ नजर भूल, तमे सेठी सेटुटरी को इश्यू करि पारिबो। बट तमरो 1991 ने तमरो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो मैंने ये सब को अफेक्ट करती भी तुम सेटुटरी को इश्यू करी पारिबो। बट ए रीट ऑफ द सेटुटरी इज द हायर कोर्ट सिग्नलिंग योर डिसीजन इज लीगली फ्लूइड एंड इट इज हियर बाय मेड वॉइड एंड इनवैलिड। जदि एमती किसी जिनस हुए तुम देख कि धर मुझे देखिली हाईकोर्ट रे एमती गोटे जिनस खराब चलती कि धर लेजिस्लेटिव रे भी किसी जिनस एमती चली कि रंगफुल एक्टिविटी चली,
ଏବେ ମୁଁ ଯାଇକି ତା ନାଁରେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ ସେଟୁଟାରୀ ଇସ୍ୟୁ କରିଦେଲି। ତ ସେଟୁଟାରୀ ଇସ୍ୟୁ କରିସାରିଲା ପରେ ସିଏ କହିବ କି ଟୁ ବି ଇନଫର୍ମ, ଟୁ ବି ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ବି ଇନଫର୍ମ, ମାନେ ଏବେ ତୁମକୁ ସେଇ ଯେଉଁ ତୁମ ଯେଉଁ ଜଜମେଣ୍ଟଟା ଏବେ କୋର୍ଟ କତିକି ଯିବ, କୋର୍ଟ ତାପରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବ କି ଯାହା ଦେବ ସେଇଟା ସିଏ ଦେଖିବ। ତ କୋର୍ଟ ଯଦି ତାକୁ ମାନିଲା କି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ତାପରେ ଯଦି ସେଟୁଟାରୀ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଛି, ଯଦି ହାଇକୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଲାଗିବ କି ତ ହାଇକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଜୁରିଡିକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ତାଦେହରେ ବହୁତ ଏରର୍ ଅଛି କିମ୍ବା ତାର ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଜୁରିଡିକ୍ସନ୍ ଅଛି, ତ ସେଇ କେସ୍ରେ ସିଏ ତାକୁ ଆସାଇଡ୍ କରିପାରିବ ବା ଭଏଡ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେବ ଟୋଟାଲ୍। ତାର ଏତିକି ପାୱାର ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ତାର ଆର୍ଟିକଲ୍ 32 ଅଣ୍ଡରରେ ପ୍ରିଜର୍ଭ ହେଇକି ଅଛି। ତ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଦ ରିଜନ୍ ଫର୍ କ୍ୱାସିଂ ଆନ୍ ଅର୍ଡ଼ର, ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ଏମିତି କ୍ୱାସ୍ ହେଉଛି ମାନେ ଚପା ହେଉଛି, ଭଏଡ୍ କରାହେଉଛି, ତ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି ତମର ରିଜନ୍? ଇଟ୍ସ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଜୁରିଡିକ୍ସନ୍, ଦ ଲୋୟର ବଡି ହାଜ୍ ନୋ ଅଥରିଟି ଟୁ ହିୟର ଦ ମ୍ୟାଟର। ଯଦି ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଜୁରିଡିକ୍ସନ୍ ଥିବ ମାନେ ଏବେ ତାକୁ କହିବେ ସେ ତମ ହାତରେ ବି କିଛି ଅଥରିଟି ନାହିଁ, ତମେ ଏବେ ସେଇ ଯେଉଁ କେସ୍କୁ ଷ୍ଟଡି କରିପାରିବ। ଏକ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଜୁରିଡିକ୍ସନ୍, ଯଦି ତମ ଜୁରିଡିକ୍ସନ୍ ଏକ୍ସେସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଦ ଲୋୟର ବଡି ୱେଣ୍ଟ ବିୟଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଡିଫାଇନ୍ଡ ପାୱାର, ତାକୁ ଯେଉଁ ପାୱାର ଦିଆଯାଇଛି, ଧର ତାକୁ ପାୱାର ଦିଆଯାଇଛି ତୁ କାହାକୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଦଣ୍ଡ ଦେବୁ ଯଦି ସେ ଏଇ ଭୁଲଟା କଲା, ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ତା ପାଇଁ ତାକୁ ସେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଦଣ୍ଡ ଲଗେଇଦେବ। ତ କ'ଣ କଲା ଏଠି? ଏକ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଜୁରିଡିକ୍ସନ୍, ବୁଝିପାରୁଛ ତ? କିମ୍ବା ଯଦି ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଜୁରିଡିକ୍ସନ୍, ଧର ତାର 1000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଯେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ସେମିତି ତାର ଚିହ୍ନା ଲୋକ ଥିଲା, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଜୁରିଡିକ୍ସନ୍। ଭାଉଲେଟ୍ସ ଦି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଲାଇକ୍ ନୋ ଫେୟାର ହିୟରିଂ, ତମର ଆଟଲିଷ୍ଟ ତମକୁ ଯାହା ହେଇଛି ତମର ଗୋଟେ ହିୟରିଂ ପାଇଁ ବି ଇଏ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ବି ତମର ଯଦି କାହାକୁ ବିନା ହିୟରିଂରେ ତମେ କିଛି କଥା ବାହାର ଡାଇରେକ୍ଟ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଇଛ, ତେଣୁ ସେଇ ସବୁ ଜଜମେଣ୍ଟ ବି ତମର ସ୍କ୍ୱାସ୍ ହେଇଯିବ। ଆଣ୍ଡ ଏରର ଅଫ୍ ଦି ଲ ଆପାରେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ଫେସ୍ ଅଫ୍ ଦି ରେକର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଅବଭିୟସ୍ ଆଣ୍ଡ ସିରିୟସ୍ ଲିଗାଲ ମିଷ୍ଟେକ୍, ହେଲା। ଯଦି ଏମିତି କିଛି ତମର ଏରର ଅଛି ତମର ଲରେ, ମାନେ ଅନ୍ ଦି ଫେସ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ଯଦି କିଛି ତମର ଅଛି ଏରର, ତମେ ସେଠି ବି ସେଟୁଟାରୀକୁ ଇସ୍ୟୁ କରିପାରିବ। ଦିସ୍ ରିଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ମୋର୍ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଟୁଲ୍ ଟୁ ଏନ୍ସିଓର ଦି ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ, ଇଏ ତମର ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲକୁ ଡିଫାଇନ୍ କରେ, ଟୁ ଏନ୍ସିଓର ଦି ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦେଖିଲେନି କି ଯେଉଁ ଆମର ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ କାହାର, ଡାର୍ସିଙ୍କର ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ଲଜ୍ରୁ ଆସିଛି କି ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର୍ ଲ, ସେସବୁ ଜିନିଷରୁ ଯେଉଁ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ ଆମେ କହିଲେ ସେ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବି ତାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍, ମାନେ ଜଷ୍ଟିସ୍ କ'ଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେ ତାକୁ କ'ଣ ହେଇଛି ତ ଶୁଣୁ ୟାର, ନହେଲେ ତାକୁ ସେମିତି ତ ଜଜମେଣ୍ଟାଲ ଦେଇଦେବ ତ କେମିତି ହେବ? ଦିସ୍ ରିଟ୍ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଟୁଲ୍ ଟୁ ଏନ୍ସିଓର ଦି ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ and the fairness of the judicial and the quasi judicial process throughout the country. Okay, then quo warranto, by what authority did issued by the court to inquiry into a legality of claim of a person to a public office, it prevents illegal ये देखो ये सब वार्ड usurpation, the taking of a position of power or importance, ମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ମନେ ପଡ଼ୁନି ସବୁ, ଦ ଟେକିଂ ଅଫ୍ ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ପାୱାର ଅର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅର୍ ବାଇ ଫୋର୍ସ। ଆଚ୍ଛା, ତା ମାନେ ହେଉଛି ତୁମର ଉସୁପ୍ରେସନ୍, କ'ଣ ବେଟା ଉସୁରପ୍ୟାସନ୍, ସେ ଯାହା ବି ଦେଖିଥାଉ। ଇଟ୍ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟସ୍ ଦି ଲିଗାଲ, ସେ ଯାହା ବି ଅଫ୍ ଦି ପବ୍ଲିକ୍ ଅଫିସ୍ ବାଇ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍, ଦ କୋର୍ଟ ଏକ୍ସାମିନ୍ ଦି ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଏ ପର୍ସନ୍ ହୋଲ୍ଡସ୍ ଦି ଅଫିସ୍, ହେଲା। ମାନେ ଇଏ କହୁଛି କି ମୁଁ ଧର ଏବେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ଅଛି, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ଅଛି, ବଟ୍ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ରେଟ୍ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ହେଇକି ଅଛି, ତ ମୁଁ ଏବେ ଯାଇକି ଯଦି କହିଲି କି ତୁ କ୍ରିମିନାଲ୍ କଲୁ କି ତୁ ଚୋରି କରୁଛୁ କି ତୁ ଯାହା ବି କରୁଛୁ, ତାକୁ ଧରିକି ନେଇକି ମୁଁ ପୁରେଇ ଦେବି ଜେଲରେ, ତ ସିଏ ତୁମକୁ ମାଗି ପାରିବ କି ତୁମେ କିଏ, ତୁମ ଅଥରିଟି କ'ଣ, ମାନେ ତୁମେ କୁହ କି ତୁମେ ଏଇ କାମ ପାଇଁ, ତ ଯଦି ପୋଲିସ ଅଛ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କିଏ ଡାକିଲେ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବାଇ, ଯଦି ତୁମକୁ ଆଉ କିଏ ନେଇକି ଯାଉଛି, then you issue the quo warranto, by what authority you take him, by what authority you do that, ତମର ଅଥରିଟି କ'ଣ ଥିଲା କି ତମେ ସେ କାମ କଲ, ଯାଇ ଯେଉଁଠିକି ତମ ଜୁରିଡିକ୍ସନ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ସେ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ତମ ତେବେ ତମ କୁହ ତମ ଅଥରିଟି କ'ଣ, ସେଇ ଜିନିଷରେ ତମେ quo warranty ଇସ୍ୟୁ କରିବ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡିଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ବିକଜ ଇଟ୍ ସାଉଟ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦି ପର୍ସନ୍ ହୋଲ୍ଡିଂ ଦି ଅଫିସ୍ ରାଦର ଦ୍ୟାନ୍ ଅଥରିଟି ଦ୍ୟାଟ୍ ମେଡ୍ ଦି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ, ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସରେ ବସିଛନ୍ତି, ମାନେ ବାୟ ହ୍ୱାଟ୍ ଅଥରିଟି, ଯେଉଁଟାକ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିଲା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ, ଏଇଟା ଅଲଗା, ବିକଜ ଇଟ୍ ସାଉଟ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦି ପର୍ସନ୍ ହୋଲ୍ଡିଂ ଦି ଅଫିସ୍, ଯିଏକି ପର୍ସନ୍ ମାନେ ଅଫିସକୁ ଏବେ ଅଫିସରେ ଅନଗୋଇଂ ଅଛି,
rather than the authority that made the appointment ऊपर कथा नुह by what authority तुम appoint करुଛ तुम जदि से पोस्ट रे अच्छ by what authority तुम बसिଛ सेठी जदि तुमको ए रीट टा इशू है माने लाया कि by what authority तुम ए काम कल तेणु जदि इशूड by a court to inquiry into a legality of a claim बुझिपारछ तो ये जो माने जहाँ भी गोटे जिनस देला से जो जिनसर लीगलिटी केते हेकि अछि ऑफ ए पर्सन टू पब्लिक ऑफिस बुझिपारछ तो माने बाय व्हाट अथॉरिटी ए सब माने तुम जदि को जिनस को जाउछ को जगह को जाउछ तुम धर ए कोर्ट को जाइकी इश्यू कल कौन को वारेंट इश्यू कला टाइम रे तुम बस ए लाइन टा को मन रखिदब इश्यूड बाय द कोर्ट टू इंक्वायरी इनटू द लीगलिटी ऑफ द क्लेम ऑफ ए पर्सन टू ए पब्लिक ऑफिस माने जो जहाँ बात तुम सब जहाँ जहाँ सब कहली कि तुमको जो ऑफिस रे बसा है तुम से ऑफिस रे से तुम कम जा से ही कर जदि तुम तार जुरिडिक्शन बाहर को गल जदि तुम को वारेंट लगिगला तो तुमको एबे देखा पड़ो तोर जो क्लेम लीगलिटी कि तुम एबे से ऑफिस रे थिलो आ तुमर जुरिडिक्शन भितर तुम रही काम कर यू डोंट क्रॉस द लिमिट अच्छा conditions for the co-warranto the office must be public and created by the constitution or statute माने statute constitutional body हेतिबा दरकार आ ता माने आ से ऑफिस टा गोटे पब्लिक ऑफिस हेतिबा दरकार the office must be substantive and independent title or existence the office must be permanent in a character the holder जेमति कि परमानेंट माने कौन कहूँ जेमति कि इलेक्शन वाला ऑफिस न माने हे नथिबो को जाई मंत्री फंत्री ये फे जो बसुचंती ताको जाई तुम पचारिबनी भाई व्हाट योर अथॉरिटी जो जॉब करचंती परमानेंट हैला द होल्डर मस्ट बी इज एक्चुअल प्रोफेशन ऑफिस माने ऑफ द ऑफिस हैला माने सी जदि होल्डर मस्ट एक्चुअल पोजिशन से रखिथिबो देन ठीक अछि देन इट मस्ट बी पब्लिक जदि मु कहा पर को वारेंट इश्यू करिया जाउछि सेटा पब्लिक इंस्टीट्यूशन हेतिबा दरकार आ ताको गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलथिबा दरकार आ से ऑफिस मस्ट बी सब्सटेंटिव एंड द ऑफिस मस्ट बी परमानेंट इट सब्सटेंटिव एंड परमानेंट इन ए कैरेक्टर इंडिपेंडेंट हेतिबो प्लस कैरेक्टर तार परमानेंट थिबो कि 5 वर्ष को थरे सेमति चेंज होनथो ता ऊपर तमे इश्यू करि परिबो कोन को वारेंट The co-warranto cannot be issued in respect of private offices. Private office रे तुम पचारिबनी by what authority तुम देखियो कि प्राइवेट प्लांट सब गोटे गोटे मुंडी हेतिबे सब तंगर माने भितर राजनीति चलथिबो तो सेठी तुम जाई कि कहबोनी कि ये काई से कोन करछ सेठी मु तापर को वारेंट इशू कर देबी सेमति परिबनी and private or any ministerial office like cabinet minister and the test is the public character of the duty हला माने तमे जदी ए को वारेंट को इश्यू करिया को चाहूछ आर मेन जिनस होला तमे गोटे पब्लिक अथॉरिटी ऊपर ए सब जिनस करि पारिबो बट मिनिस्ट्रियल पोस्ट तमर ए जोड़ा सब 5 वर्ष को थरे होचंदी से ऑफिस आ तमर धर एमती हला कैग कि तमर हला जोड़ा कि तमर चेंज होचंदी कैग तम माने जो पोस्ट रा तमर 5 वर्ष चेंज होछ हला तापर तमे ए को वारेंट इश्यू करि पारिबो नाही जोड़ा सब परमानेंट ऑफिस तमे ता ऊपर को वारेंट इश्यू करि पारिबो बाय व्हाट अथॉरिटी तमे ए सब जिनस कल अच्छा parliamentary power over writ article 32 रा clause 3 तुमको कहला state that parliament may by law empower any other court to exercise all or any of the power exercisable by the supreme court under article 32 से कहूँ कि parliament empower any court to exercise all or any of the power exercised by the supreme court under article 32 माने parliament ता लॉ द्वारा माने कोर्ट को डायरेक्शन दे पारिबो कि तमरो जत्तिक सब पावर अछि यू हैव टू एक्सरसाइज से कोर्ट को डायरेक्शन दे पारिबो अंडर आर्टिकल 32 3 भितर पार्लियामेंट भी कोर्ट को किछि डायरेक्शन दे पारिबो बाय द लॉ जदि से किछि लॉ पास करछ कारण पार्लियामेंट तो बनउछ ना लॉ दिस प्रोविजन अलाउड फॉर दिस डिसेंट्रलाइजेशन एंड एक्सपांशन ऑफ रेमेडी बियॉन्ड द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट एटा टिके डिसेंट्रलाइज करछ माने रिट इश्यू कहाँ पर रहा ओनली सुप्रीम कोर्ट ओनली हाई कोर्ट उपर बट ये जो पार्लियामेंट को जो टिकी पावरटा दि जाए बाय मेड बाय द लॉ आ द्वारा कौन हो डिसेंट्रलाइज जिन हो कि खाली सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भितर कथा ना ए पार्लियामेंट भी ये लीगली किसी जिन कर माने एमती हेल्ले कौन कहल किए मोनोपोली कार हेनी जमती कि सब उपर समस्त कंट्रोल रही जमती कि किसी काम करेंगे जदि ये रखे ये कम कले सी ये कर
and no such law has been enacted to date, making this a latent power ହେଲା। Currently, only the Supreme Court, Article 32, and the High Court, under Article 2 to 6, have the power to issue writ for the enforcement of the fundamental right. जानलो। अच्छा, तापर आर्टिकल 33 को आसीबा, पावर टू रिस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट फॉर स्पेसिफिक ग्रुप्स, किसी स्पेसिफिक ग्रुप पे हमर फंडामेंटल राइट को हम रेस्ट्रिक्ट करी रखी परिबा। तो कौन कौन आर्टिकल 32 empowers the parliament to restrict or abrogate the fundamental rights to specific groups। कौन किए किए सी ना आर्म फोर्सेस, तमर फोर्स चार्ज विथ द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर, कि जोड़ा इंटेलिजेंस ब्यूरो रे थांती तांकर केतेटा राइट को आमे प्रिजर्व करी माने ये रखी ये आर्टिकलटा तमर तांको पई तांको राइट को किछि मात्रा रे रखा हो। तो ऑब्जेक्टिव इज टू एंश्योर द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटी एंड मेंटेनेंस डिसिप्लिन। माने एमती ना कि जदि तुमको कहले एबे तुमे कोन कहलो दौड़ दिन को 5-5 राउंड बंदूक धरिक दौड़, तो सेठी तुम कौन कहबो कि मोर ए फंडामेंटल राइट ये होनी, माने मो डिग्निटी मो इच्छा करबिनी, मोर फ्रीडम मु जाए जीबी बुलिबी मु माने एकेडमिक बाहर को जाए कि मोर बुलिबी एरा मोर ये, बट से सब जिनस हबनी जोड़े तुम आर्टिकल 33 मेंशन करदेला। तो आर्म फोर्स और केतरा एमती स्पेसिफिक ब्यूरोज को पाई आपको तुम रेस्ट्रिक्ट कर पारिबो। काली सकाळ इंटेलिजेंस ब्यूरो कहबो आई एम फ्री ऑफ फ्रीडम टू एक्सप्रेशन एंड कहि परिबी जहाँ इच्छा मु कहबी, कहीदेले तो सरीगला ना, दैट इज इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो दिस पावर कैन ओनली बी एक्सरसाइज्ड बाय द पार्लियामेंट नॉट स्टेट लेजिस्लेटर। स्टेट ये जो तुम जतिक रोचे दैट इज एक्सरसाइज्ड बाय द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटर द्वारा हो पारिबो नाही। एंड एनी लॉ मेड अंडर दिस आर्टिकल कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ कंट्रावेनिंग एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स हैला। से लिखिदेला ये माने तुम एटा तुम या फंडामेंटल राइट चैलेंज कर पारिबो नाही जब तुम सेमती जाउछ, कारण से ऊपर लिखि दे आर्टिकल 33 तुम ता पई जहाँ पर फंडामेंटल राइट एप्लीकेबल होनी किछटा। तापर आर्टिकल 33 र लॉ द एरियाज ऑफ द रेस्ट्रिक्शन, द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एज द फॉर द डिसिप्लिनरी रीजन, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन द ट्रेड यूनियन द पॉलिटिकल ग्रुप, मो कारण जीबी आर्मी को मोर गोटे पॉलिटिकल ग्रुप खोली केमती हो, राइट टू आसेम्बली प्रोटेस्ट आम सब मिसू सैनिक मैंने पूरा काली सका गवर्नमेंट ना बस बंदूक धरी सी तो प्रोटेस्ट कले सैला ना। तापर पब्लिक मीटिंग, राइट टू मूव कोर्ट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट है, ये सब तुम रेस्ट्रिक्शन ने जाए इन सर्टन सर्विस मैटर्स, तुम माने राइट टू मूव कोर्ट टू एनफोर्समेंट ऑफ सम राइट क्या कहते रिट इश्यू कहते, तुम किसी केस जाए रिट इश्यू कर जहाँ को बैन कराई आर्टिकल 33 साहाଯ୍ୟରେ यही सब केस तुम जाए रिट इश्यू कर। द प्राइमरी लेजिस्लेशन एनाक्टेड अंडर दिस आर्टिकल इज द आर्मी एक्ट, द नेवी एक्ट एंड द एयरफोर्स एक्ट एंड द पुलिस फोर्स एक्ट। माने जदि रेस्ट्रिक्शन ऑफ द राइट माने जदि भी एठू किसी न मिलला द प्राइमरी लेजिस्लेशन एनाक्टेड अंडर आंको पे अलग अलग सब एक्ट अच्छे, नेवी एक्ट ताकर एयरफोर्स एक्ट ताकर आर्मी एक्ट एमन आंको साहाଯ୍ୟରେ रेगुलेट होती। एबे सेमाने कहबेनी कि मु जाई फंडामेंटल राइट पर ये होची मु जाई सेठी केस करबी, दैट इज आर्टिकल 33। तापर rationale behind the restriction, the nature माने ड्यूटी ओवर द इंडिविजुअल लिबर्टी, फर्स्ट ड्यूटी ओवर द इंडिविजुअल लिबर्टी तार कांसेप्ट है ड्यूटी फर्स्ट, तापर जाई तुम लिबर्टी। द नेचर ऑफ देयर सर्विसेज रिक्वायर्स हाई डिसिप्लिन, ऑफ कोर्स जानथिबो, एंड इंटरमीडिएट ओबीडियंस टू कमांड, full exercise of the fundamental rights could compromise the national security or the public order. The law ensures the personnel remaining apolitics and focuses on their operational duties। तो हमें पॉलिटिक्स को न जाए ऑपरेशनल संभाल, ऑपरेशनल ड्यूटी तुमको जहाँ कहब मैंने तुम कर तुम फंडामेंटल ड्यूटी देखिए तुम, कारण तुमको से तुम जाइए। It is a constitutional balancing act between needs of the national security and the individual's liberty of specific state functions। माने ये तमर कॉन्स्टिट्यूशनल बालांस करे कहा ऊपर तमर निजर इंडिविजुअलिटी ऊपर प्लस इंडिविजुअल लिबर्टी ऊपर प्लस तमर स्टेट रो नेशनल सिक्योरिटी ऊपर, ठीक अच्छे, बट बालांस है सब जिन रो से फंडामेंटल राइट्स कहे मुझे करी यूज तो जहाँ देखा हम। तापर आर्टिकल 34, आर्टिकल 34 तुमको कौन कहूँ, इट इज ए इंडेमिनेट
indemnity for acts done during the martial law. Martial law means जो तमरो से सैनिक rule. Article 34 provides the parliament with the power to pass a law to indemnify to protect the penalty. अरे मानने से यार protect penalty. So ना उड़ा ठीक है वार्ड ना उड़ा वार्ड करते ही से ना मोरे मोने नहीं. It is a compensate for the harm or loss. It's compensation no कारण harm की loss ले it is a compensation. Article 34 provides the parliament with the power to pass a law to protect from the penalty from any person. This protection appeals to action takes in connection with the maintenance or restoration of the order in any area where martial law was forced. It validates a punishment, inflicts and perpetuates orders and other acts done by any person. ये तो मुझे कहूँ जो टाइम रे मार्शियल लॉ लगी बा मिलिटारी रूल लगी एमती कौन तुम कन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं माने मिलिटारी रूल बाय मिलिटारी एमती कन्स्टिट्यूशन कोटी डिफाइन है बट एटा तुम बट इट एसेंशियली मीन्स द सस्पेंशन ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ एंड गवर्नमेंट बाय मिलिटारी ट्रिब्यूनल्स यही जगार तुम किछिटा ऑर्डिनरी लॉ तुम भावले ये सस्पेंड हो कहीं मार्शियल लॉ जो लगे मैंने तुम घर बाहर कारण से तुम सब फंडामेंटल राइट एक्टिव होगी न थाए द टाइप ऑफ द थिंग द जो फास्ट पॉइंट से लिखला आर्टिकल 34 प्रोवाइड्स द पार्लियामेंट विथ द पावर टू पास ए लॉ टू इंटिमिडेट बा को एनी पर्सन को जदि तार कौन किसी पेनाल्टी लगी प्रोटेक्ट करने चाहूँगी द पार्लियामेंट विथ द पावर टू पास लॉ पार्लियामेंट लॉ पास कर पारिबो and this protection appeals to the action takes in connection with the maintenance or the restoration जदि किसी हो जाइए तार मेंटेनेंस कि तार रिस्टोरेशन ऑफ द ऑर्डर इन एनी एरिया वेयर मार्शियल लॉ इज एनफोर्स जदि कोई मार्शियल लॉ एनफोर्स होती प्रोटेक्ट ये सब माने पार्लियामेंट चाहिए इन लॉ जो आमर मार्शियल लॉ हो जाइए माने किछिटा मात्रा पार्लियामेंट प्रोटेक्ट करी पारिबो जोटी तुमर फंडामेंटल राइट एक्टिव ही न थाए इट वैलिडेट द पनिशमेंट इनफ्लिक्टेड एंड दी एटा सब ये जो जिनस गुड़ाक टिके वार्ड गुड़ाक टिके मारिक देखियो हला डिफाइन दी फॉरफिचर द लॉस एंड द गिविंग ऑफ समथिंग एज ए पेनल्टी हला लॉस और गिविंग समथिंग एज ए पेनल्टी जदि तुमर सेमति किछ हेछि इज वैलिडेट द पनिशमेंट जतिक सब लॉस हेछि the other act done by any person तुम से तुम आर्टिकल 34 लगे से लास्ट से लिखीदेला मार्शियल लॉ इज नॉट डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज एसेंशियल मीन्स द सस्पेंशन ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ एंड गवर्नमेंट बाय द मिलिटरी ट्रिब्यूनल्स अच्छा ये जो सब वार्ड गुड़ाक ये सब केतटा कष्ट कष्ट वार्ड जो लिखी जब तुम या छाड़ीदेव जदि मेन्स टाइम जो आसो ये सब वार्ड्स गुड़ाक टे मैंने देखी जीव कारण फंडामेंटल राइट रे से जो ये सब वार्ड गुड़ाक जो आंसर राइटिंग लिख एत सारा जिन लिखा अपेक्षा गुड़ाई किसी बेले मन रुइन सब वोकाबुलरी जिन गुड़ाक मुझे जो गोटे जिन मुझे भूल जाए ये जो कौनटा परफेक्टरीज से जो इनफ्लेक्टेड लिखला बेले लिखिदेव बाकी जो हठात देखला बेलू भूलीजु कौन जिन कम पढ़लु तापर तुम आर्टिकल 34 तुमको कौच कि तुम रेस्ट्रिक्शन जो मार्शियल लॉ लगी रेस्ट्रिक्शन करहब फंडामेंटल राइट्स को सिंपल मीनिंग या ये किसी देखा दरकार नहीं भर क्वेश्चन आस अच्छा स्कोप ऑफ द इंडेमिनिटी द पावर ऑफ द इंडेमिने कौन बेटा इंडेमिने ना पाटर क्वेश्चन गुड़ा गोटे आर्थर टू सब आड करी जो कष्ट कष्ट वार्ड गुड़ा मुझे भूल जाऊँ वो नोट सहित एकाथरे बन दो तो कंपनसेट और हार्म और लॉस अच्छा अच्छा दिस पावर एक्सटेंड टू द पब्लिक सर्विस एज वेल as एनी अदर पर्सन ए सिटीजन हु इज असिस्टेड बाय द मिलिटरी एंड द लॉ मस्ट बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट कैन नॉट डन बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और द स्टेट लेजिस्लेटर जदि पार्लियामेंट ऑर्डर देइछि ताको आउ के भी माने माने कौन कहल ओनली तुम पार्लियामेंट ही तुम से टाइम लॉ बन पार जो तुम मार्शियल लॉ लगी वो स्टेट लेजिस्लेटर की एग्जीक्यूटिव बॉडी लॉ बन पार ना द लॉ सीक टू प्रिवेंट द लीगल चैलेंजेस एग्नेस्ट द एक्शन टेकिंग ड्यूरिंग द शाउटिंग से जो पीरियड तुम आसला किसी लीगल एक्शन नवाको किसी मान धर मार्शियल लॉ लगी से देखुं कि आम पार्लियामेंट से किसी एमती कम हो कि धर माने तार सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गलानी
तो से केस रे पार्लियामेंट आसी पारिबो किछि लॉस माने नुआ नै कि कारण से टाइम रे तमर फंडामेंटल राइट्स काम करे नाही। देन नो स्पेसिफिक एक्ट हैज बीन पास्ड अंडर आर्टिकल 34(8) कहते ना एमती कौन आर्टिकल माने एटा एते भी ये नुह खाली जस्ट लिखा है बोले बुझी दियो। बट इट रिमेन्स ए डोरमेंट पावर फॉर द पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट लीगल प्रोटेक्शन काम पड़े बाहर। बट एमती कौन जगह मार्शल लॉ लगे बेसी टाइम तो ये आर्टिकल एवं पावर को केवे आसीनी तो जानी था कि आर्टिकल 34 तुम अच्छी मार्शल लॉ लगे जदि क्वेश्चन आसो आर्टिकल 34 इज कौन ऑप्शन देखिए मार्शल लॉ को लिखाई मार्शल लॉ जहाँ थी दैट इज मार्शल लॉ वर्सेस द नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 martial law affects only a specific area involves rule of the military emergency तमर आर्टिकल 352 वाइज एटार कंट्री ऊपर लगे एंड तमर ये सस्पेंड्स द ऑर्डिनरी लॉ तमर जो मार्शियल लॉ तमर ऑर्डिनरी लॉ को आउ गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दिए। बट तमर जो नेशनल इमरजेंसी कंटिन्यू द सिविल एक्जिस्टेंस विथ एक्सपैंडेड एग्जीक्यूटिव पावर तुम एग्जीक्यूटिव पावर को टी एक्सपैंड कर दियंती। बट तुम फंडामेंटल राइट किसी मात्रा रुहे सब फंडामेंटल राइट तुम गायब हुए। बट जो टाइम मार्शियल लॉ लगी मैंने तुम सब ऑर्डिनरी लॉ सस्पेंड हो तुम जहाँ गवर्नमेंट भी इश्यू कर दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द मार्शियल लॉ एंड आर्टिकल 34 इज नॉट प्रोविजन फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ द मार्शियल लॉ इट इज ए प्रोविजन फॉर आफ्टर माने तमर जो आउ कौन अच्छी कि 4th पॉइंट गोटे अच्छे मार्शियल लॉ इज ए एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल concept and article 34 merely gives parliament power to address it aftermath माने तमर जो मार्शियल लॉ तुम कॉन्स्टिट्यूशन कोड लिखा है कि नहीं एटा गोटे तुम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। बट जेहेतु तुम आर्टिकल 34 अप्लाई हुए मार्शियल लॉ लगे पूर्वर नुह मार्शियल लॉ लगी सारा पर तुम आर्टिकल 34 अप्लाई हुए जोटि कि गोटे पार्लियामेंट किसी मात्रा जे जो जहाँ भी सब चाओ से गोटे देखिए जा कंट्रोल को आनिब। अच्छा legislation to give effect to the part 3 article 35 it made that the parliament alone shall have the power to make laws for the certain matters under part 3 लास्ट से लिखा है आगे जहाँ चेंज हम सब पार्लियामेंट ही लिखो। दिस एनश्योर्स द यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस द कंट्री कि सब कंट्री जमी गोटे यूनिफॉर्मिटी रो ना कर्णाटक तार अलग बाहर कर सी तार अलग बाहर कर सेमती केमती हम। बट जहाँ सब चेंज करा कथा पार्लियामेंट कर and it necessary provision to prevent the state legislator from diluting or varying the fundamental right enforcement हला। तापरे this article makes the parliament the sole authority for prescribing a punishment for acts declared to be offence under the part 3 untouchability under article for example कहूँ माने सीएटी कहूँ कि तोर आर्टिकल 35 माने पार्लियामेंट हूँ सोल अथॉरिटी पार्लियामेंट हाथ में पावर अच्छी कौन पाई तार पनिशमेंट भी से प्रेस्क्राइब कर जदि तुम फंडामेंटल राइट पार्ट 3 एमती किसी जिनस को तुम अफेक्ट करुच पार्लियामेंट भी चाहिए तापर किसी लॉ बन पार जमती तुम अनटचेबिलिटी लॉ अनटचेबिलिटी जब देख लो कि एमती बहुत सारा प्राक्ट हो तो पार्लियामेंट भी चाहिए फंडामेंटल राइट रे किसी चेंज चांज कर पब्लिक ओपिनियन कौन करा पड़ो अमेंडमेंट आने पड़ो माने तुम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जोटा कि तुम आर्टिकल 368 अंडर तुम नॉर्मल सिंपल एक्ट सिंपल बिल गुड़ा रोचे आर्टिकल 100 अंडर बट तुम कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू स्पेशल अमेंडमेंट सब आर्टिकल 368 अंडर है। हाँ 4टा स्लाइड अच्छे the prescribing the matter of the requiring uniformity is prescribing residence as a condition for certain employment जोटा कि तुम आर्टिकल 16(3) रे रोचे empowering other courts to exercise the writ jurisdiction जोटा कि आर्टिकल 32(3) रे रोचे restrict fundamental right of the armed forces आर्टिकल 33 रे रोचे तापरे तमर मार्शियल लॉ माने से कहूँ कि एतिक सारा जिनस तुम एक्सक्लूसिवली पार्लियामेंट हाथ में अच्छे जदि तुम कोई ऑप्शन ने दब आ भितर कौ गुड़ाक तुम एक्सक्लूसिवली माने पार्लियामेंट हाथ में रोचे तुम जानी ना दरकार आर्टिकल 16 क्लॉज 3 आर्टिकल 32 क्लॉज 3 आउ 33 आउ 34 सब 333 अच्छे तेणु मन रखार असुविधा हेनी क्लॉज आर्टिकल 16 32 33 34 ये सब तुम पार्लियामेंटर एक्सक्लूसिव पावर है। And the existing law for the untouchability and human trafficking forced labor under article 23 are consequences of the parliament's power under article 35 माने ये सब ये भी टाइम टू टाइम तुम कौन है अपडेट
कि पार्लियामेंटर पावर तार जोटा कि आर्टिकल 35 अंडर अच्छी कि ये चाहिए पार्ट 3 किछिटा पार्ट को चेंज कर पारिबो तो सी जदि चाहिए माने जो किसी गोटे एक्जिस्टिंग लॉ बनवाक चाहूँगी तोर अनटचेबिलिटी उपरे कि तोर लेबर पोस्ट लेबर उपरे से माने किसी गोटे लॉ बनवाक चाहूँगी जोटा एक्जिस्टिंग अच्छी बट से आउ किसी लॉ बनवाक चाहूँगी तो से बनई पार ता हाथ अच्छी then exclusion of the state legislator. The state legislator cannot make prescription a punishment for any act declared to be an offense under part 3. Only the parliament have state legislator writ issue କରି ପାରିବ ବଟ୍ ସେ କୌଣସି ପନିସମେଣ୍ଟର ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କରି ପାରିବ ନାହିଁ ମାନେ ସରି ଏଇଟା କହୁଛି ସରି ରିଟ୍ ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ ସେଟା ତ ଗଲା ତମର ଇଏ କଥା କୋର୍ଟ କଥା ମାନେ ତମର ସେ ଯେଉଁ ତମକୁ ମୁଁ କହିଲି ଆର୍ଟିକଲ 35 ଅଣ୍ଡରରେ ସେ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଦି parliament, not for the state legislator. If a state law existing on such matters before the constitution, the parliament can amend or repeal it. जदि सेमती किसी state law आगुरी भी exist होगी अच्छी, तो parliament ताऊ चाहे repeal भी करी पारिबो. This centralized power is critical for maintaining the integrity and consistency of the fundamental right national wide. गोटे इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी गोटे भल जिनस ये सब जिन को सेंट्रलाइज करा जाइछि हैला एठी तमे कहि परिबो कि एबे ये यूनिटरी फीचर्स दौर यहाँ गोटे इंडिया यूनिटरी फीचर कि यही टाइम रे सी सब कम निज हाथ को आणुची द कॉन्स्टिट्यूशन एनश्योर्स द फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी कंप्रोमाइज और दे आर एनफोर्स वैरिड बाय रीजनल लेजिस्लेटिव बॉडीज है तापर देख लो सब कर दियो रिकैप तुम habeas purpose against lawful detention माने तुम half the body mandamus against the public officials to perform the duty माने we command prohibition against the lower court exceeding its jurisdiction stop pending then statutory to quash an order by the lower court जदि माने को जो ऑर्डर को क्वाश करिया पई कोवारेंटो एग्नेस्ट द इलीगल होल्डिंग ऑफ पब्लिक ऑफिस जदि कि इलीगली माने ऑफिस को होल्ड करछि आ तमर प्रोहिबिशन सब बेले केस चालुथला माने केस जो टाइम रे कोन हिस तार भर्डिक्ट दिया हिनी केस जतले सुनानी हेइनी ता पूर्वरु तमे प्रोहिबिशन लगे परिबो बट जतले केस सुना हेइ जाइछि ता पर तमे स्टैट्यूटरी लगे परिबो से तो लिखला टू क्वाश एन ऑर्डर बाय द लोअर कोर्ट जदि लोअर कोर्ट एमती किसी ऑर्डर पास करिछि ताको क्वाश पई तमे आनिबो कोन स्टैट्यूटरी से जदि कोनसी लॉ तमे धर हाई कोर्ट रो हारि गलो तमे सुप्रीम कोर्ट जाई परिबो एंड आर्टिकल 32 इज अल्टीमेट सेफगार्ड छाड़ जानलो तो सब तापर आर्टिकल 33 तमर पार्लियामेंट रेस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ सच इंस्टीट्यूशंस आर्टिकल 34 पार्लियामेंट्स पावर टू acts during the martial law माने को सब एक्ट जे एक्टिंग करिवो मार्शियल लॉ टाइम रे एटा आर्टिकल 34 तक पावर दोछ दैट इज पोस्ट फैक्टो प्रोटेक्टिंग काहे ताको पोस्ट फैक्टो प्रोटेक्टिंग को गला जदी तमरो मिलिटरी रूल पूर्व रही था ताले प्री फैक्टो होई था जेता परे हो जे से जो पोस्ट फैक्टो प्रोटेक्शन हेई साइला परे ता परे मु केमति ताको प्रोटेक्ट करिवि से जो आर्टिकल 34 अछि these two articles recognize that the absolute rights can sometimes undermine the state security अच्छा हाँ तो सब जान लो सहीला आ कौन आर्टिकल 35 centralizes the power to legislate on the certain matter related to 3 like the punishments and this prevent the creation of the patchwork of conflicting laws on the fundamental right by various state legislator ताको भी से रखी पारिबो बा जदि किछि हेइ जाइछि ताको काटि भी पारिबो छाड़ तो जानलो देन तमरा आउ कोन अछि कंक्लूजन में आर्टिकल 31 to 35 complete the circle of the fundamental right they define the remedies under article 32 and establish the expectation or limitations under article 33 and 34 the limitations तमरो article 33 और 34 रे लिखा जाइछि जोटी remedy तमरो article 32 रे लिखा जाइछि and clarify the legislative it is called as the heart and soul of the fundamental right or the constitution article 32 they clarify the legislative authority under article 35 to manage and enforce these rights चलो ये तो सब जान लो आ पढ़ी कला दे देबी तुमको सेशन तुमरो एतिकी थिला टू अच्छा काली तो हमरो डीपीएसपी हो आ कोन हमरो डाउट अछि
ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଯିବା ଆଉ।